अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम् अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा देवर्षीणां च नारदा गन्धर्वाणां चित्ररथा गन्धर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलो मुनि सिद्धानां सिद्धानां कपिलो कपिलो मुनि। मुनि। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पोपट? I can read, Prabhuji. हाँ क्या पढ़ी प्लीज. Translation. Of all trees, I am the banyan tree, and of all the sages among the demigods, I am Narada. Of the Gandharvas, I am Chitraratha, and among perfected beings, I am the sage Kapil. Purport. The banyan tree Ashwatha is one of the highest and most beautiful trees, and people in India often worship it as one of their daily morning rituals. Amongst the demigods, they also worship Narad, who is considered the greatest devotee in the universe. Thus, he is the representation of Krishna as a devotee. The Gandharva planet is filled with entities who sing beautifully, and among them, the best singer is Chitraratha. Amongst the perfect living entities, Kapila is the son of Devhuti, is a representative of Krishna. He is considered as incarnation of Krishna, and his philosophy is mentioned in the Srimad Bhagavatam. Later on, another Kapila became famous, but his philosophy was atheistic. Thus, there is a gulf of difference between them. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू फॉर रीडिंग. तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि हर चीज में, हर पर्टिकुलर ग्रुप और हर सेट में कैसे भगवान जो है सबसे प्रोमिनेंट है. ही इज वन अमंग द मेनी एंड वन अबव द मेनी. तो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया पर्पट में कि बनियन जो ट्री है वो हाईएस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रीज है, इंडिया में वर्शिप भी होती है उसकी. तो वो कृष्ण बोल रहे हैं मैं हूँ. और सब देव ऋषि में जो हैं, नारद मुनि प्रोमिनेंट सबसे ग्रेटेस्ट डिवोटी है, प्रभुपाद कह रहे हैं. और जैसे हमने डिस्कस किया है, कई हायर प्लैनेट्स होते हैं वहाँ, देवी देवता, गंधर्व, वसु, मरीच, ऐसे अलग अलग तरीके के लिविंग बीइंग्स हैं जो कि ज़्यादा एडवांस्ड हैं मटीरियली, मटीरियल स्टैंड पॉइंट से. उनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी, जिसको आजकल के टाइम में हम कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं सुपर नेचुरल पावर, तो उस तरीके की चीज़ें हैं, वो भगवान की कृपा से उनको दी गई हैं ये सब. और उनमें गंधर्वों में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा म्यूजिक में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सुरीला गाते हैं, और उनमें बेस्ट चित्ररथ है. तो वो कृष्णा कह रहे हैं दैट इज हु ही इज. और जो सबसे ज्यादा शुद्ध भक्त हैं, परफेक्टेड बीइंग्स हैं, उनमें कपिल मुनि का नाम आता है. वो सन ऑफ देवहूति, देवहूति को उन्होंने जो है ज्ञान दिया था भागवतम का. और सांख्य फिलॉसफी का डिटेल समझाया था. सांख्य फिलॉसफी प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कपिल मुनि ने जो दी थी वो थीस्टिक थी, उसमें भगवान और शास्त्रों का इंपॉर्टेंस था. लेकिन एथीस्ट कपिला भी है जो बाद में प्रोमिनेंट हुए, और उनकी जो फिलॉसफी है वो एक्चुअली शास्त्रों के अनुकूल नहीं है. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट. उच्चैश्रवसमश्वानाम् विधिमाम् अमृतो भवम् ऐरावतां गजेन्द्राणाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपाम्. नराणां च नराधिपम्. कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन पर्पट? Hare Krishna. हाँ जी, हरे कृष्णा. प्लीज आप पढ़िए. Translation. Of horses know me to be Uchchaishrava, produced during the churning of the ocean for nectar. Of lordly elephants, I am Airavata, and among men,
I am the monarch. Purport. The devotee demigods and the demons asuras once took part in churning the sea. From this churning, nectar and poison were produced, and Lord Shiva drank the poison. From the nectar were produced many entities, of which there was a horse named Uchaishrava. Another animal produced from the nectar was an elephant named Airavata. Because these two animals were produced from nectar, they have special significance, and they are representatives of Krishna. Amongst the human beings, the king is a representative of Krishna because Krishna is the maintainer of the universe, and the kings who were appointed on account of their godly qualifications are many maintainers of their kingdoms. Kings like Maharaja Yudhishthir, Maharaja Parikshit, and Lord Ram were all highly righteous kings who always thought of citizens' welfare. In Vedic literature, the king is considered to be the representative of God. In this age, however, with the corruption of the principles of religion, monarchy decayed and is now finally abolished. It is to be understood that in the past, however, people were more happy under righteous kings. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे समुद्र मंथन की लीला का वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने, हिंट दिया है कि कैसे देवताओं और राक्षसों के बीच में एक बारी ये प्लानिंग हुई कि हम निकालते हैं अमृत, और अमृत कैसे आएगा, उसके लिए हमें समुद्र का चर्न करना पड़ेगा, और उससे सबसे पहले आया पॉइजन। और पॉइजन का क्या हुआ, कौन सा पॉइजन था वो, क्या नाम था उसका, कौन बताएगा, कौन सा पॉइजन था जो समुद्र मंथन के उसमें से आया था? प्रभु जी क्या, सॉरी क्वेश्चन प्रभु जी, पॉइजन का नाम क्या था? हाँ, ये नहीं पता प्रभु जी, sorry। तो अमृत मंथन था कुछ, बट सबसे पहले जो आया उसका हलाहल पॉइजन आया था ना, उसके अंदर से, समुद्र मंथन के अंदर से। हलाहल, हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी। तो उसके लिए देवी देवता गए, शिव जी ने सेवा की, उन्हें पूरा का पूरा जो पॉइजन इतना सारा था अनलिमिटेड क्वांटिटी का, उसको एकदम अपने शक्ति से इतना कर लिया कि उसके हाथ में आ गया वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। होता है ना, आजकल हम देखते हैं बड़ी बड़े टेक्नोलॉजी आने से क्या होता है कि बड़े कंप्यूटर थे पहले के जमाने में, उसको धीरे धीरे छोटा करके अब सेलफोन के अंदर ही कंप्यूटर हो गया। तो नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना इसको। तो ओरिजिनल नैनो टेक्नोलॉजी लॉर्ड शिवा ने यूज की थी, पूरा पॉइजन जो था उसको कॉन्सेंट्रेट कर लिया था। तो उसके बाद ड्रिंक कर लिया शिव जी ने पॉइजन, और पॉइजन जो है उसको एक्चुअली अपने गले में रोक लिया। ज्यादातर लोग कर नहीं सकते ना ऐसा, कोई भी नहीं कर सकता। कई बार नकल करते हैं लोग शिव जी की, और कहते हैं कि हम भी गांजा पिएंगे, या वो क्या होता है उसको भांग पिएंगे। एक्चुअली ये सब गलत है। भगवान अनलिमिटेड चीजें कर सकते हैं, और उस तरह से भगवान के जो एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमी गॉड्स हैं जैसे लॉर्ड शिवा, वो भी पावरफुल चीजें कर सकते हैं। हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते, कृष्णा को हम इमिटेट नहीं कर सकते। ये लोग कहते हैं अरे हम भी रासलीला करेंगे, कृष्णा ने की थी। नहीं, कृष्णा ने उससे पहले गोवर्धन उठाया था, आप गोवर्धन उठाओ पहले, फिर उसके बाद बताना। इतने सारे राक्षसों को मारा था अकेले सिंगल हैंडेडली। तो इसलिए वो चीज नहीं कर सकते, इसलिए भगवान को मिमिक मत करो, जो भगवान कह रहे हैं वो सुनो और उसको फॉलो करो, उससे भला होगा आपका भी, बाकियों का भी। तो जो विष है वो ले लिया शिव जी ने, और शिव जी ने एक्चुअली अपने गले में ही रोक लिया, तो इसलिए उनको नीलकंठ कालकंठ भी कहते हैं। डार्क हो गया था उनका गला एकदम। और फिर नेक्टर आया और कई सारी चीजें आई।
उच्च श्रवा घोड़ा आया और ऐरावत हाथी आया। तो ऐरावत किसने ले लिया था? इंद्र ने। इंद्र ने। और उच्च श्रवा घोड़ा बलि महाराज ने ले लिया था। Because these two animals were produced from nectar, they have special significance and they representative of Krishna. प्रभु जी उच्चेश्रवा घोड़ा किसने लिया था? बलि महाराज। बलि महाराज ने। फिर आगे बता रहे हैं जो नरा नाम, जो आम नर लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें जो लीडर, चीफ, किंग, जो मोनार्क है, वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा आवक है। तो वो जो मेन पर्सन है वो है कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक्चुअली जो किंग है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है कृष्णा का, और उस तरीके से उसको एक्ट करना चाहिए। उस तरीके से एक्ट करना चाहिए मतलब कि जैसे एक पिताजी सोचते हैं अपने बच्चे के लिए अच्छा करने के लिए, उसी तरह से किंग का धर्म है वो, उसके पूरा परिवार है उसका, सारा का सारा जो किंगडम है, सबको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा ही एक्चुअली जेन्युइनली होता था पहले के टाइम में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए युधिष्ठिर महाराज, रामचंद्र जी, परीक्षित महाराज, उनके टाइम में ऐसे ही था एक्चुअली। लेकिन कलयुग के प्रभाव से एक्सप्लॉइटेटिव, गलत, गंदे किंग भी आए और उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले भी होते थे कई जो गलत होते थे, लेकिन उनकी वो इक्के दुक्के ऐसे ओकेजनल होते थे, लेकिन कलयुग में तो बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो गई। तो इसलिए हालांकि डेमोक्रेसी ये कोई बहुत अच्छा मींस नहीं है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट तभी होती है अच्छी जब एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी जो कि अपने डिपेंडेंट्स की सेवा के लिए राजा बने, कि हाँ मुझे सेवा करनी है, और ऐसा राजा जो है उसको पूरी रिस्पेक्ट दे के वो सही तरीके से चला सकता है। लेकिन ऐसे राजा अभी मिलने अभी के टाइम में मिलने मुश्किल है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की भावना, इसके भगवत गीता की जो नॉलेज है इसको स्प्रेड करके लोगों का हृदय परिवर्तित हो, और हृदय परिवर्तित होगा तब उनकी एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी की जगह सर्विस ओरिएंटेड, हम्बल, सेल्फलेस सर्विस की भावना आएगी, और उस भावना से वो जब कार्य करेंगे तो जन कल्याण के लिए होगा। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले के टाइम में जब ऐसे राजा होते थे तब जनता जनार्दन ज्यादा खुश होती थी। अभी तो बिल्कुल ऐसा है नहीं, खुश नहीं है। आगे चलते हैं। सो 10.28 आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधानाम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक्, धेनुनामस्मि प्रजनश्चास्मि कंदर्पा, प्रजनस्मि कंदर्पा सर्पानामस्मि वासुकी, सर्पाणामस्मि वासुकी। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पॉपर्ट इसका? मैं पढ़ दूं? हाँ जी पढ़िए। करेक्ट। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Yeah. Translation. Of weapons I am the thunderbolt. Among cows I am the Surbhi. Of causes of procreation I am Kandarpa. Hence I am Vasuki. Purport. The thunderbolt, indeed a mighty weapon, represents Krishna's power. In Krishna Loka, in the spiritual sky, there are cows which can be milked at any time, and they give as much milk as one likes. Of course, such cows do not exist in the material world, but there is mention of them in Krishna Loka. The Lord keeps many such cows, which are called Surbhi. It is stated that the Lord is engaged in herding the Surbhi cows. Kandarpa is the sex desire of presenting good sons. Therefore, Kandarpa is the representative of Krishna. Sometimes sex is engaged in only for sense gratification, but such sex does not represent Krishna. But sex for the generation of good children is called Kandarpa and represents Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Give me 1 second.
तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि सारे अस्त्र शस्त्र जो वेपन्स हैं उनमें कृष्ण कौन है? कौन है कृष्ण? कौन बताएगा सारे वेपन्स में से? Thunderbolt. हाँ, थंडरबोल्ट, वज्र। वज्र। जो इंद्र का, कई बार बोलते हैं ना इंद्र का वज्र, उसका प्रभाव बड़ा पावरफुल वेपन है। सारे देव्यास्त्रों में भी सबसे श्रेष्ठ है। सारे अस्त्रों में देव्यास्त्र श्रेष्ठ होते हैं और देव्यास्त्रों में थंडरबोल्ट श्रेष्ठ है। ऑफ कोर्स अगर हम कंपेयर करें ब्रह्मा विष्णु महेश तो या राम जी, उनके पास और भी वेपन है, मगर यहाँ उनका कंपैरिजन नहीं हो रहा। यहाँ हो रहा है जनरली वेपन्स का। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, कृष्ण लोक है, वहां पे कई सारी गायें ऐसी हैं जो सुरभि गाय कहते हैं उनको, और वो हर वक्त भगवान की सेवा के लिए दूध देती रहती है। कभी भी कर सकते हैं हम, लेकिन वो वहीं पे है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और ऐसा शास्त्रों में दिया गया। और कृष्णा गोपाल गोविंद, वो गाय की सेवा में लगे रहते हैं। फिर बता रहे हैं कि कंदर्प, कंदर्प क्या होता है? यहाँ पे लिखा है कंदर्प इज द सेक्स डिजायर फॉर प्रेजेंटिंग गुड सन्स, देयरफॉर कंदर्प इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। तो अच्छी क्या कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में अच्छे बच्चे हों, उसका जो डिजायर है दैट रिप्रेजेंट कृष्णा, के हम आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में एक कृष्णा कॉन्शियस या बहुत अच्छा काफी उनके अच्छी क्वालिटीज हो उनके अंदर। ऐसी धारणा से जब कोई भगवान से प्रार्थना करता है और प्रयास करता है कि हमारे बच्चे हों, तो ये जो डिजायर है, ये डिजायर भगवान कह रहे हैं कि भगवान को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये प्योर डिजायर है भगवान की सेवा में लगाने के लिए, खुद को, अपने परिवार को, अपनी बच्चों को। और सारे के सारे सांप जो सरपेंट्स हैं उसमें वासुकी बड़े स्पेशल है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं आई एम वासुकी। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। अनंतश्चास्मि नागानां, Anantastasmi naganam वरुणो यदसामहं, वरुणो yasamaham यादसामहं पितॄणामार्यमा चास्मि, पितॄणामार्यमाचास्मि यमा संयमतामहं। yamasam कौन पढ़ेगा I, ट्रांसलेशन? हाँ पढ़िए प्लीज। translation. One of the many hooded Nagas, I am Ananta, and among the aquatics, I am the demigod Varuna. Of departed ancestors, I am the Arima, and among the dispensers of law, I am Yam, the lord of death. Purport. Among the many hooded Naga serpents, Ananta is the greatest, as it is the demigod Varuna among the aquatics. They both represent Krishna. There is also a planet of Pita's ancestors, presided over by Aryama, who represents Krishna. There are many living entities who give punishment to the miscreants, and among them, Yama is the chief. Yam is situated in the planet near this earthly planet. After death, those who are very sinful are taken there, and Yam arranges different kinds of punishments for them. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो जो मैनी हुडेड नागाज हैं, जिनके कई सारे हुड हैं, उसमें भगवान है अनंत। और जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक्स जो जो होते हैं, उसमें भगवान क्या है? वरुण। वरुण मतलब कि वरुण देव, जो सारे के सारे वाटर बॉडीज के कंट्रोलर हैं। Of departed ancestors, I am Aryama, and among the 10 dispensers of law, I am Yama, the lord of death.
तो अनंत जो है वो ग्रेटेस्ट है उसमें, मैनी हुडेड नाग में या सरपेंट्स में। और वरुण हमने बताया एक्वाटिक्स में। ये दोनों कृष्णा बोल रहे मेरे उससे आ रहे हैं, मैं ही हूँ। There is also a planet of Pita's ancestors presided over by Aryama who represent Krishna. तो जैसे पितृलोक है, पीताज का प्लैनेट है पितृना, जहाँ पे जनरली जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं ऐसे एंसेस्टर्स वहां पे जाते हैं, और वहां पे आर्यमा जो है वो प्रोमिनेंट है, तो वो लीड करते हैं, तो इसलिए प्रिसाइड ओवर बाय आर्यमा, वो कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कई सारे लिविंग एंटिटीज हैं, देयर आर मेनी लिविंग एंटिटीज हु गिव पनिशमेंट टू द मिसक्रिएंट्स, के कई बारी हम देखते हैं कि जज करने का किसी को सेवा दी जाती है, कोर्ट में होता है कि हाँ भाई विक्टिम को आप सजा दीजिए, या पहले के टाइम में राजा देते थे सजा। तो इन सब में सबसे प्रोमिनेंट कौन है? वो है यमराज। यमराज हर कोई किसी ना किसी को दे रहा है जजमेंट, ठीक है ना, जज कर रहे हैं, या कई सारे एक्चुअली लोग हैं जो उन्होंने ऑफिशियली जिनको सेवा दी गई है जज करने की, लेकिन अल्टीमेटली जो बंदा सबको जज करता है वो है यमराज। उनकी सेवा ये है भगवान ने दी है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कृष्ण। ओके नेक्स्ट। प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां, प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, कालः कालः कलयतामहम् कलयातमः मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, मृगाणां च मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् मृगेन्द्रोऽहम् वैनत्येयश्च पक्षिणां, वैनतेयश्च वैनतेयश्च पक्षिणाम्। पक्षिणाम्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन पॉपट को वॉलंटियर करना चाहेगा? I can read, Prabhuji. हाँ पढ़िए। Translation. Among the Daitya demons, I am the devoted Prahlad. Among subduers, I am Time. Among beasts, I am the lion. And among birds, I am Garuda. Purport. Diti and Aditi are two sisters. The sons of Aditi are called Adityas, and the sons of Diti are called Daityas. All the Adityas are devotees of the Lord, and all the Daityas are atheistic. Although Prahlad Maharaj was born in the family of Daityas, he was a great devotee from his childhood. Because of his devotional service and godly nature, he is considered to be representative of Krishna. There are many subduing principles, but time wears down all things in the material universe and so represents Krishna. Of the many animals, the lion is the most powerful and ferocious. And of the million varieties of birds, Garuda, the bearer of Lord Vishnu, is the greatest. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं दैत्य जो है, दैत्य मतलब दिति के पुत्र, और आदित्य में तब अदिति के पुत्र। तो अदिति के जो पुत्र हैं वो सारे, उसकी क्वालिटीज जो थी वो काफी गॉडली थी, और दिति के पुत्र जो थे दैत्य, उनके अंदर थी क्वालिटीज डेमोनिक। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सारे आदित्य डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड एंड दैत्य क्या हो गए? वो एथीस्टिक हो गए। प्रहलाद जो है वो दैत्य के उसमें आ रहे हैं, मगर वो बहुत एडवांस डिवोटी हैं। तो सब दैत्यों में भगवान कौन है? भगवान है प्रहलाद, ठीक है। हालांकि प्रहलाद महाराज ऐसी जगह बॉर्न हुए हैं जो कि एथीस्टिक है, मगर वो डिवोटी है, इसलिए ही इज रिप्रेजेंटिंग द लॉर्ड। फिर आगे बता रहे हैं कि among subduers I am time। तो प्रभुपाद कहते हैं कि many subduing principles हैं, कई सारी चीजें हैं, लेकिन
समय से सब खत्म हो जाती है। तो भगवान जो है वो समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमंग बीस आई एम लायन, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कई सारे एनिमल्स हैं और लायन जो है मोस्ट पावरफुल और फेरोशियस है, तो वो कृष्ण रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कई सारी वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं, लेकिन उनमें भगवान कौन है? गरुड़ा, जो कि विष्णु जी को के वाहन है। ठीक है, तो ये सब श्लोक जो हैं ये इसमें बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स हैं, इसलिए जस्ट रीड करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। पावना पावताम चास्मि, पावना पावताम अस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, रामः शस्त्रभृतामहम् न्यासानां मकरश्चास्मि, मकराश्चास्मि श्रोतसाम् अस्मि जानवी, श्रोतसाम्। श्रोतसामस्मि जाह्नवी। ये कौन पढ़ेगा ये ट्रांसलेशन ऑफ पॉकेट? I can read. हाँ जी पढ़िए। Translation. O purifiers, I am the wind of the wielders of weapons. I am Ram of fishes. I am the shark, and of flowing rivers, I am the Ganges. Purport of all the aquatics, the shark is one of the biggest and is certainly the most dangerous to man. Thus, the shark represents Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो पावना, पावना सॉरी पवन, जो पवन है हवा, वो पावन, वो प्यूरिफाई कर देती है। सो पावताम पवना, प्यूरिफाई करने के लिए विंड। देखो कुछ कुछ चीजों को प्यूरिफाई करने के लिए बोला जाता है। एक कोई एग्जांपल दे सकता है? विंड का तो खैर हमने पढ़ा, और क्या है, और कौन सी चीजें हैं जो प्यूरिफाई करती हैं? प्रभु जी गंगा जल होता है। हाँ, तो प्यूरिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा स्पिरिचुअली प्यूरिफाई करना है, मतलब साफ करने के लिए क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं? पानी, कहीं से भी पानी यूज पानी से सब स्नान करते हैं कि नहीं, हाथ धोते हैं कि नहीं? तो ये तो कोई बहुत इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि नहीं? तो पानी यूज होता है प्यूरिफाई करने के लिए। और क्या यूज हो सकता है? मतलब अलग अलग सेटिंग सिचुएशन के हिसाब से। तो पानी को, विंड को जो यहाँ पे बताया, और फायर को, ये सब चीजों को यूज किया जाता है। फायर या फिर सन, दे आर कंसिडर्ड प्यूरिफाइंग, इनसे प्यूरिफिकेशन हो सकती है और अलग अलग सेटिंग में अलग अलग इनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्यूरिफायर्स जो हैं उनमें विंड है प्यूरिफाइंग करने, और ऑफ विल्डर्स ऑफ वेपन आई एम राम, क्योंकि राम जी जो हैं ही इज जिस तरीके से हम कहते हैं ना राम बाण चलाया, तो राम बाण सब कुछ तोड़ देता है, सारे अलग बाण खत्म हो जाते हैं उसके सामने, है नहीं यार, डजंट मैटर। और फिशेस में शार्क जो है वो बिगेस्ट है और मोस्ट डेंजरस है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं शार्क को, कृष्ण। और फ्लोइंग वाटर में गैंजेस। एक्सक्यूज मी। ओके, ठीक है, if we can do one more maybe. Okay, we can probably do this one. सर्गानामादिरन्तश्च, सर्गानामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन, मध्यम अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानाम्, अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहं, वादः। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन प्रॉपर? ओके, अंश पढ़ेगा ट्रांसलेशन। All of creation, all of all creations, I am the beginning
and the end. I'm also the middle. O Anjana, of all sciences, I am the spiritual science of self, and among logicians, I am the Conclusive. conclusive truth. Thank you very much. पर्पट कौन पढ़ेगा इसका? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? Prabhuji, can I read? हाँ, please, definitely. Among the created manifestations, the first is to create of the total material element. As explained before, the cosmic manifestations is created and conducted by Mahavishnu. Garbhodakshay Vishnu and Shirodakshay Vishnu. Shirodakshay Vishnu and then it is annihilated by Lord Shiva. Brahma is a secondary creator. All these agents of creation, maintenance, and annihilation are incarnations of the material qualities by the Supreme Lord. Therefore, he is the beginning, the middle, and the end of all creation. For advanced education, there are all kinds of various kinds of books of knowledge, such as the 4 Vedas, the 6 supplements, the Vedanta Surta, Book of Logic, Book of Religiosity, and the Puranas. So altogether, there are 14 divisions of books and of education. Of these, the book which presents Adhyatma Vidya, spiritual knowledge in particular, the Vedanta Surta represents Krishna. Among logicians, there are different kinds of arguments. Supporting one's argument with evidence that also supports the opposing side is called Jalpa. Merely trying to defeat one's opponent is called Vedanta, but the actual conclusion is called Vada. This conclusive truth is a representation of Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much for reading so nicely. How old are you now, Anisha? Which grade you go to? I'm in 4th grade, Prabhuji. 4th grade. Very nice. Excellent. You read so nicely. We missed you in your last Kahoot quiz. Yes, Prabhuji. I think I was at school, Prabhuji. Oh yeah, we made a mistake. Next time we have to do it over the weekend so that all the kids can join also. Okay, Prabhuji. So make sure you read the 10th chapter, because the last time you did the quiz, you came like top. So maybe, you read the 10th chapter. Okay, Prabhuji. Okay, very nice. Thank you, Prabhuji. Thank you. So यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि of all creations I am the beginning and the end and also the middle. कुछ भी शुरुआती तरीके से होता है तो भगवान ही उसके लिए सारे चीजें प्रोवाइड करते हैं. जैसे सारे इंग्रेडिएंट्स, इवन सृष्टि के शुरू में भी ब्रह्मा जी को सारे इंग्रेडिएंट्स दिए भगवान ने, नॉलेज दी, सब कुछ दिया. उसी तरह से कोई भी लाइफ अगर एग्जिस्टेंस में आती है तो मेल फीमेल आपस में अप्रोच करते हैं. वो कैसे होता है? कृष्णा के अरेंजमेंट से. कृष्णा ही बिगिनिंग करवा रहे हैं और एंड भी कृष्णा ही करवा रहे हैं और मिडिल में मेंटेन भी कृष्णा करा रहे हैं. ठीक है ना? सारी इतनी सारी तरह की नॉलेज है उसमें कृष्णा कह रहे हैं मैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान हूं. तो पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो क्रिएशन है उसमें कंडक्ट करने के लिए बड़ा डिटेल में दिया गया श्रीमद् भागवतम में. अलग अलग तरीके के विष्णु हैं, महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु. और जब एनिहिलेशन होती है, जब खत्म होता है, सब नाश होने वाला होता है, तो शिव जी जो है उनकी सेवा, ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं. ये सब लोग सेवा कर रहे हैं कृष्णा के अंडर, उनकी इच्छा से. तो इनको
क्योंकि ये पर्टिकुलर सेवा में लगे हैं, इनको गुण अवतार भी कहते हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु शिवा। और क्रिएशन, मेंटेनेंस, एनिहिलेशन, ये सब इनके थ्रू हो रहा है। तो अल्टीमेटली करवाने वाले कौन है? करवाने वाले तो कृष्ण है। तो फिर ही इज द बिगनिंग, मिडिल एंड द एंड। और फिर अलग अलग तरीके के जो नॉलेज है उसमें अगर हम देखेंगे तो कुछ नॉलेज ऐसी हैं जो मटेरियल लेवल पे आम चीजों को देखने के लिए, ग्रॉस मैटर के फॉर्म में समझने के लिए, जैसे साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, ये सब ग्रॉस चीजें। कुछ चीजें हैं जो मेंटल लेवल को समझने के लिए, जैसे साइकोलॉजी, इस तरीके की फील्ड्स। और इसके भी ऊपर है हायर लेवल जो है स्पिरिचुअल साइंस, और वो भगवान कह रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने। और हम देखते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन में एक्चुअली ज्यादातर चीजें मटेरियल साइंस से रिलेटेड, लेकिन अगर देखें हमारे शास्त्रों में मटेरियल भी है, साइकोलॉजिकल भी है और स्पिरिचुअल भी है। इनफैक्ट हमको लगता है शायद सब स्पिरिचुअल है, ऐसा नहीं है। मटीरियली भी बहुत चीजें दी हुई हैं शास्त्रों में कि कैसे अलग अलग साइंसेस को समझ के अप्लाई करके अपनी लाइफ में लगाना है, जिससे आपकी लाइफ बेटर हो, ताकि आप भगवान की भक्ति में लग सकें। तो वो भी है ज्ञान दिया हुआ, लेकिन वो इस तरीके से, इस पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे जैसे मॉडर्न साइंस देखता है। मॉडर्न साइंस का देखने का तरीका थोड़ा अलग है, एनालाइज करने का, और शास्त्रों का अलग है। तो डिफरेंस इज डेफिनेटली देयर, बट गोल जो है और सिमिलैरिटीज बहुत है। फिर आगे बता रहे हैं कि कई तरह के लॉजिशियंस होते हैं, लॉजिक के साथ खेलते हैं। कई कई चीजों में डिबेट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, लॉजिकली प्रूव डिसप्रूव करने की बात होती है। तो यहाँ लिखा है सपोर्टिंग वन आर्ग्यूमेंट विद द एविडेंस दैट आल्सो सपोर्ट्स द अपोजिंग साइड इज कॉल्ड जल्प। तो ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गए हैं यहाँ पे। तो जल्प हो गया जो दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है, और अगर कोई सिर्फ डिफीट करना चाहता है ऑपोजिट को, और उसको कोई मतलब नहीं है सच्चाई क्या है, उससे मायने नहीं है, बस मेरे को डिफीट करना है, मेरे को सही रहना है, तो वो हो गया वितंड। ठीक है ना, ये हो गया वितंड। और अगर कोई एक्चुअल कंक्लूजन हो, जो एक्चुअल कंक्लूजन है उस पे पहुंचते हैं डिस्कशन करने के बाद, तो उसको कहते हैं वाद। ठीक है, जो नेचुरल कंक्लूजन आ रही है। और यहाँ बोल रहे हैं ये नेचुरल कंक्लूसिव ट्रुथ जो आया है वो रिप्रेजेंट करता है कृष्णा को। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो जो जो श्लोक हमने करे वो सब आपको क्लियर हुआ है? आज हमने काफी करे, क्योंकि ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं थी, मोर और लेस फैक्ट्स थे ये सारे। तो ये सारे हमने आज किए। 26 to 32, तो हम 33 से बाद में करेंगे। ये चैप्टर में टोटल 42 है, तो नेक्स्ट क्लास में होपफुली हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले पूरे वीक में कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाऊंगा एक्चुअली। तो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हमारी अब होगी सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट वीक। तो एक वीक आपको पढ़ने के लिए टाइम है, आप लोग पढ़ सकते हैं भगवद गीता, और मैं जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी अपलोड करके शेयर कर दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, हम ये भी स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।